Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य घाटगे और हसल इंडिया के लाइव वीकेंड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सुरों की दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम की है, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी है और जिन्होंने इंडिया में ओपेरा सिंगिंग की शुरुआत की है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं काबुकी खन्ना। So hello, welcome Kabuki Khanna to our live talk show. Hello, I'm so glad to be here on And Hustle how are you? How's India. the lockdown? How's your lockdown? Lockdown is, yeah, see, it's similar. It's just like I don't know. Lockdown is so it's a difficult time for everybody out there and for even for us. But then like sitting at home doing everything whatever we could from home is still the same like as it is for everybody out there. So yeah, just coping with this ऑब्वियसली thing. घर पे लॉकडाउन अगर करके अगर घर पे रहने बोलेंगे तो ऑब्वियसली किसको बुर नहीं लगेगा। तो इसलिए तो हम टॉक शो लेकर के आए हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि यार तुम लड़कियों को क्यों ला रहे हो। तो आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स, यार बॉस लड़कियों को इसलिए ला रहे बिकॉज दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट वीक टू यू। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप महिलाओं को क्यों ला रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स कि ये एक वुमेन एम्पावरमेंट वीक है जिसमें हम एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं वुमेन्स को, गर्ल्स को जो काम करना चाहती हैं, शायद किसी वजह से नहीं कर पाती हैं या कोई उनको मोटिवेट करने वाला नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई द टॉक शो इज हियर एंड वेलकम काबुकी, यू आर द इंस्पिरेशन फॉर आवर व्यूअर्स एंड आई थिंक आपने जो शुरुआत की है इंडिया में ओपेरा सिंगिंग की, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। एंड आई थिंक मैं खुद भी जब आपको मैंने देखा फर्स्ट टाइम तो आई थॉट कि यार ये व्हाट इज दिस ओपेरा सिंगिंग। तो आई वाज इन शॉक कि कैसे ये पॉसिबल है। तो आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन दी वर्क की ये क्या है ओपेरा सिंगिंग कि इंडिया में ये फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने देखा है। तो आई थिंक इन्वेंटेड बाय यू, इट इज दिस इन्वेंटेड बाय यू? Yeah, Indian opera is invented by me. It's like इसका पूरा पीछे बहुत real story है which I had in my mind, which I'm gonna tell now to the viewers and ऑब्वियसली हम तो जानना ही चाहते हैं और इवन हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, इसके पीछे ऐसी कौन सी स्ट्रगल है जिसने आपको प्रेरित की, जिसने आपको मोटिवेट किया कि ओपेरा सिंगिंग की शुरुआत इंडिया में की जाए। तो ओपेरा सिंगिंग इज आई थिंक मैंने इंडिया से बाहर आई थिंक इटली में मैंने ये सुना था, इटली में ओपेरा सिंगिंग होता है। It came from Italy only. So basically, tell everybody out there that opera singing is actually from Italy. So it came from there only, and it's a proper training as you have in Indian classical. So here we have Italian Indian girl. Here we have. It's like different languages. It's like suppose generally people hear like, wow, you sing in 15 languages. Wow. So we had this in our training only that we have to, do it like German sing karna, Spanish, because opera is all about like singing. So we have these different categories like German leader, जैसे आपकी गजलें होती हैं, ऐसे German में leader होता है, Ich liebe dich, kind of that like I love you, which is I would like to say to all my viewers over there. so I mean it's like a different Italian opera area, which is like जो people say no theater होता है, opera theater, singing and acting at the same time. Then we have the French melodies, which are like songs जो गाने होते हैं in French, beautiful songs are there. तो बहुत बड़ा chapter है ये, and I was in this field. I mean I've been in this like from past now 12-13 years अब हो गए करते करते, and उसमें लेकिन ये था कि I used to sing a lot, used to perform. My first performance was in Kamani, Don Pasquale. I did with this the theater Don Pasquale, again an opera theater and an opera theater. So then like I had this in my mind
when we were doing operas, I used to think that people used to wonder that people listen to the contemporary music. Good, I love contemporary as well. I think that jazz, blues, pop, rock, all these genres, I love it. But I used to Okay. feel that why not to take opera to the people? I mean, why not? Because opera, everybody has this impression in their mind that opera is just like it's always like sung in a very high pitch and that one. So it's like it has to be like all the loud and all that. But truth is that there's a lot more about it, a lot more. So I decided it's years back. I decided to like make it a different genre, like make it in a different genre and present it to the audience. Like, so then I came up with this idea, which is Indian opera genre. So then, by the God's grace, I mean, I feel really happy and blessed that I got to perform in Jashn-e-Rekhta Urdu Heritage Festival thrice. They really liked it, and even the audience loved it. So first time when I went there, I was like, Kabuki chal gaya to good, nahi chala to koi nahi, tomato kha ke aa jana. I mean, it's just people would like it good, and people actually loved it, and I'm so happy. I mean, I feel nice because लोगों को पसंद आया, तो that's what makes us happy as an artist. I think any artist needs that. This is how it Obviously, लोगों को पसंद आएगा और आ ही रहा है. As I have seen your videos, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं. It is almost 3 million views. आपने शायद टी सीरीज के लिए भी आपने एक एल्बम लॉन्च किया है. हाँ, तेरी गलियां गली में करा था, and तेरी गलियां, right. recently लॉकडाउन में दो नैन परेगी रोशन फिल्म का सॉन्ग है दो नैन परेगी, जिसका I got to do Spanish, English with Hindi, and वो लॉकडाउन में ही करा है, and people were like very surprised कि लॉकडाउन में तुमने कनाडा का प्रोडक्शन तो कैसे करा है. I was like होम स्टूडियो से करा है, not a big setup, but pretty good for doing. I mean, अब देखो लॉकडाउन में we can't have such bahana and excuse and feel and tell my people also that you should not have any excuse. Just do your work with passion. That's what we're doing, like, and wish to. I mean, और ज़्यादा अभी तो पूरा life है. So it's just like कि everything was done in this lockdown. Can you believe? I mean, वहाँ से कोई कनाडा से, कोई टोरंटो से, कोई इंडिया से, कोई इधर से उधर से, and then he just combined it and पूरा proper, and then we came out with this. तो आपने सारे वर्ल्ड को कंबाइन करके इंडिया में ले आया. Obviously. तो ये एक नया इन्वेंशन है म्यूजिक इंडस्ट्री में. इन्होंने एक नई क्रांति लाई है जिसे हम कह सकते हैं. और हमारे व्यूअर्स काफी दिनों से मुझे मेल कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, यार तुम कर क्या रहे हो, यार तुम कर क्या रहे हो, यार तुम किसको लेकर के आ रहे हो. सो हियर वी हैव काबुकी खन्ना. शी इज इंडियन ओपेरा सिंगर. और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग लेकर आया हूँ. और मैं चाहता हूँ कि काबुकी कि आप एक इंट्रोडक्शन, सिंगिंग इंट्रोडक्शन आप हमारे व्यूअर्स को दो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन कि हु इज काबुकी. Oh, so with the song. So I'm gonna start out with this very famous song, though इसका mashup lockdown में काफी गाया जा रहा है. Again, Italian, as you were talking about, Italian with Hindi. So here we go. वैसे भी इटली से हमारा वैसे भी पुराना रिश्ता है इंडिया में. This way I'm gonna get more viewers from Italy. Yeah. So I'll start. Una mattina mi sono alzata, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzata e ho trovato nell'acqua un partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzata e ho trovato
sole invaso, o partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, che mi sento di morire. प्यार में सोचने है प्यार मत करना, जीने मरने का कोई करार मत करना। प्यार में सोचने है प्यार मत करना, जीने मरने का कोई करार मत करना। चाहती बातों में समझो कब कर, ये बातें सुनने से अपने दिल को न तोड़ प्यार में सोचने है प्यार मत करना, जीने मरने का कोई करार मत करना। Che mi sento di morire, che mi sento di morire. Una mattina mi sono alzata, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Sento di morire, sento di morire. प्यार में सोचने प्यार मत It was awesome. मैं तो इधर झूमने लग रहा था. It was a short one, but yeah. It was too good. And Thanks a lot. I would like to know कि how you became opera singer. मतलब opera singing ही क्यों? मतलब कुछ तो माइंड में क्लिक किया होगा या कुछ तो एक कहीं से तो इंस्पिरेशन मिली होगी. I tell you, I don't know if it is. I would like to tell this. मतलब जो real story है that I was a kid, and that time it used to be like my brother is in engineering, like he's a vice president in Dublin, and like in his stream. So even my parents used to always. Although my dad is actor director from National School of Drama, but still like my parents wanted कि artist का life में क्या है, you Kabuki should actually go for either science का stream, and I was pretty good in my studies, like head girl and topper and all that. I think लड़कियां होती हैं पढ़ाकू kind of. लड़कियां होती है पढ़ाकू kind of और and boring kind of भी बोल सकते हैं अपन. नहीं boring नहीं. हाँ वो क्लास में वो एक मॉनिटर वाला एक रोल होता है ना, फिर बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद. Exactly. So ये चीज है, like I used to be really good in studies, तो मेरे parents सोचते थे कि why don't you go in अच्छा science stream and all that. I was pretty good in science and everything. So but मैं music के लिए बहुत passionate थी. So I used to watch जैसे सब देखते musical shows. I used to watch a lot of these and I had this very much too much interest in opera. So मैं बहुत देखती थी. ऐसे एक movie आया था, Phantom of the Opera came, and it was coming on this one of the channel, Pix, I guess, Sony Pix. It was coming on one of the channels on TV. And because I watch a lot of Hollywood movies and Bollywood, Hollywood, many Hollywood movies. So I was watching that as a kid, and I used to feel like a fairy kind of. होता ना एक बचपन में you play with Barbie dolls. I used to be one of those Barbie dolls से खेलने वाली लड़की. So I was watching that pic because there were many opera singers. As a kid मुझे नहीं पता था कि वो opera singing है, पहली बात. तब मुझे ये नहीं पता था कि वो opera singing होती है. So I used to see them performing, and picture में the Christina comes and she's like, I used to feel like wow. Like उस time पे I had opera नहीं था मेरे पास, तो I used to be like wow, ये कहाँ से voice आ रही है? It's so much like fairy. I mean, fairy like voice, na? As a kid, you feel. Yeah, I can understand. Yeah, cuteness एक मन में आती है जो. आता है हाँ एक feeling कि यार this is so beautiful. I mean, ये आवाज it to me opera is like कि पता नहीं कौन सी दुनिया से आवाज आई है. I don't know if people feel the same about it, but it's my feeling that I always find it very fascinating. Still, and I think I will for entire life. So I used to wonder कि ये जो आवाज है, can't it be developed? Because
and I was so small. I was like in 7th 8th class. I used to like, I went to my mom. I said, "Ye jo hai, this is the real voice." My mom said, my mom also, we are Indian families में, they don't know about opera. Definitely, I mean, people like, नहीं हमारे यहाँ हिंदी नॉर्मल सॉन्ग जैसे होता है वैसा चलता है, या हमारा इंडियन क्लासिकल जो चलता है जैसा है, which is beautiful in itself. But my parents were clueless. They were like, हमें नहीं पता, it must be यार रियल सिंगिंग ही होगा. So anyways, I got मुझे आंसर नहीं मिला उसका, but then मुझे रास्ता जरूर मिल गया. मतलब I started looking for it, started research on it. गूगल तो पता नहीं था, बट इतना जरूर पता है कि मैंने काफी सर्च करवाया अपने भाई बहनों को पकड़ के. You just search, you look for the this. My brother, I used to tell him, you just look for the opera teachers. कौन है, क्या है, कैसा होता है, ये जो सिंगिंग है फॉरेन में, how it is done, who teaches this. I really want to know more about it. पीछे पड़ गई literally. I got after this. And then I decided कि काबू की, you have to go for this training, and you will have to, because then I just wanted, मेरा mind में था, I wanted to become one as a hobby that time. I never knew that my hobby will turn into my destiny one day. ये मुझे नहीं पता था. तो मैंने बस अपना स्टार्ट करा. My journey started in 8th 9th class. I started getting good training for this, and many teachers in my life, like one of them is very close to my heart, जो काफी जिन्होंने मेरा, there are other chapter now which is very close to my heart. Like so many incidents happened. I was very young, and like a lot of ups and downs and all that. So one of my teacher who always supported me, so Jasmine Monterel, he's from Spain, but a very nice human being and a great teacher. So he used to visit India often, and I got a lot of lessons from him, lot of motivation, just like my parents he is to me. And ऐसे मैं करते गई अपना, मैंने studies करा, opera में training I did, and I joined for like English honors. I started after my 12th, and then I left it because I realized that I cannot give my time for something which is not my thing. I mean, I would rather give it to my opera training. So there's a lot more added to this, like it's theory and all that. A lot more you have to study. It's not just singing. But तब से मेरा जो आपका क्वेश्चन था कि जो opera मुझे कहाँ से motivation, inspiration कहाँ से, वो यही था. Movie देखी and पता नहीं क्या हुआ. I just took the way, and I'm happy. Like this is something I'm made for. So या इवन मैंने भी बहुत सालों बाद ओपेरा सिंगिंग सुना है. और बचपन में एक होता था ना कि जब टीवी पे कोई किसी चैनल्स पे HBO में या किसी में भी आ जाता था, तो हम देखते हाँ. थे कि ओपेरा सिंगिंग, तब पता था कि हाँ ओपेरा सिंगिंग, हाँ दिस काइंड ऑफ इट इज. तो आज पता चला कि इंडिया में आने के बाद पता चला कि एटलीस्ट ओपेरा सिंगिंग को मैंने इंडियन स्टाइल में सुना, तो इट इज कन्वर्टेड इन इंडिया. तो मतलब इंडियन स्टाइल में जब कन्वर्ट होता है ना, तो वो एक अपना एक अलग ही पहचान छोड़ जाता है, एक अलग ही मतलब एक टची हो जाता है. You feel connected. ये चीज है. हाँ, या फिर लाइक, और अगर इसी सेम चीज को अगर आप इटालियन में या ब्रिटिश में, अगर किसी और लैंग्वेज में अगर आप करोगे, तो वो फील नहीं आएगा, वो टच नहीं आएगा जो हम यहाँ पे इंडिया में रह के सुनना चाहते हैं. जो एक कॉमन पीपल जो सुनते हैं, यू नो, कि मतलब श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान को लोग सुनते हैं, तो एक अलग पहचान और एक अलग सुरीली आवाज सुनाई देती है. बिल्कुल. इंडियन ओपेरा सिंगिंग की जो आपने शुरुआत की है, ये इसके लिए तो मैं हेड्स ऑफ करूंगा आपको. और I would like to ask you one more question. Who supported you the most in family? Yeah, most I tell you, एक वर्ड में बताऊं या पूरा बताऊं? पूरा बताना चाहो तो पूरा बता सकते हैं. हमारे पास बहुत वक्त है, हमारे व्यूअर्स के पास भी आज बहुत वक्त है. Okay. So because you know the moment, वैसे भी 9 बजे के बाद लॉकडाउन होता है. 9 से सुबह 5 बजे तक मैंने सुना कि कोरोना नहीं फैलता है. अच्छा. 5 बजे के बाद जो भी होता है, जो 5 बजे के बाद ही होता है. बट क्या ये अफवाह है या एक्चुअली इट इज? नहीं, ये अफवाह है. कोरोना है यार.
कभी भी Corona फैल is सकता है, किसी को भी हो सकता है यार, किसी को भी ना हाँ हो, बट अभी अभी दिल्ली में सिचुएशंस इसके बहुत खराब चल रहे हैं, मैंने न्यूज पे देखा है। it is. I mean, it's I think you know what we just that's what like जैसे हम perform कर रहे हैं and all अभी live shows बंद हो गए like I miss my live shows though because अभी ऐसा है कि there's no live show and we just like this so at least इस तरह से हम लोगों को positive और motivate कर सकते हैं because I'm like when I heard about these cases people are actually committing like no suicide and all that and like actually feeling bad about it समझ रही हूँ मैं इस बात को समझने वाली बात है but thing is that you know you can't help it you have to you need to हम be चाह के भी positive हेल्प नहीं कर सकते हैं, हम चाह के भी, इवन हम चाह टच कर नहीं भी कर सकते, तो वहां जा नहीं सकते, हम किसी पेशेंट को देखने नहीं जा सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि हम उनको हेल्प करना चाह के भी हेल्प नहीं कर सकते। true तो आई that we थिंक can I mean this is something but at least we can bring smiles on people's faces through हाँ, any art इस no टाइम पे let it be singing let it be any painting let it be dance anything I mean it's art is art yeah so you were asking me something हाउ मेनी ट्रैक्स यू हैव रिकॉर्डेड, कितने ट्रैक्स आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं और कितने एल्बम्स हैं आपके? Huh. So this I told you that I came up with the TCDs one. I came up with the Roshan Prince one, which is Do Nain Farebi, and I did a remix for Jashne Rekhta, all original like remix in Sehale Miskin, Urdu की पहली गजल, उर्दू की पहली गजल को पूरा like I remake like इट पूरा मीन्स ओपेरा like it अब was उर्दू में भी? हाँ definitely बिल्कुल इज दिस उर्दू पॉसिबल? Arabic yeah सीरियसली? you wanna listen या आई वांट टू लिसन। it's like उर्दू में this ओपेरा यार, हाउ इट इज पॉसिबल? सुनो सुनो फिर बताओ कि इश्क क्या शय है किसी कामिल से पूछा चाहिए इश्क क्या शय है किसी कामिल से पूछा चाहिए कैसे जाता है किसी बेदिल से पूछा चाहिए ज़ियाने में फिक्र मौजूद कभी है दोहराए नैना आनाए बातिया दोहराए नैना आनाए बातिया सूखे पिया जो न दिखे तो कैसे काटूं अंधेरी रातियां तो कैसे काटूं अंधेरी रातियां सखी पिया को कैसे दोहराए नैना आनाए बातिया दोहराए नैना आनाए बातिया Wow, it's bravo. Thank you so much. And my next question is, which countries value opera singers the most?
मतलब ओपरा सिंगिंग की वैल्यू कितने कंट्रीज में है, में कितनी है। कंट्रीज में सुना जाता है? Hmm. See, one thing in one word, I'll answer this question. And opera is just like anywhere. If people have different tastes, I would not say that if somebody might like it a lot or may not like it. I mean, it really depends from person to person. किसी को डिपेंड्स बहुत अपॉन पसंद हो पर्सन, सकता है। बट किसी कंट्री में एक वैल्यू होती है ना कि हाँ, जैसे हमारे यहाँ एक कल्चरल वैल्यूज होती है, हर स्टेट में एक अलग अलग कल्चर है और अलग अलग गाने हम्म। हैं। जैसे Yes, भोजपुरी गाने हो गए और हिंदी गाने हो गए, दोनों में डिफरेंस है। तो बिल्कुल है। भोजपुरी की वैल्यू आपको दूसरे स्टेट में मिलेगी, मराठी की वैल्यू आपको सिर्फ महाराष्ट्र में मिलेगी, और Opera की वैल्यू, मलयालम, तेलुगु, तो वी हैव मैनी लैंग्वेजेस, yeah, true. बट वैल्यू सबकी Opera का I अलग अलग would जगह say है, होता है। अलग अलग स्टेट पे अलग अलग लैंग्वेजेस की वैल्यू होती है। तो आई थिंक Hmm. See, I would ओपेरा की answer भी। you this thing. है हाँ, opera is basically it is basically for elite class माना जाता है। जैसे होता है ना, like even earlier the rich class used to go and pay for the opera shows and all that, है ना? मूवीज So में देखा है opera मैंने। का जो, हाँ, you must have seen and it's true, like जैसे हमने भी perform करता है as an opera singer, तो ज्यादातर कहाँ, like embassies में we perform and we perform in different places like opera houses or big auditoriums, huge auditoriums, and not क्या बोलते हैं जो आपकी gigs and all है वहाँ opera, that's not the opera scene. Gig is not the opera scene. Like it's for the other genre, either Bollywood or the pop and all. You can sing that. So opera का value definitely सबसे ज़्यादा European countries like Italy, France, Germany, and एंड नाउ most of इन the इंडिया। foreign countries. Now in India, like you, एग्जैक्टली यार, that's a compliment. आपने जो, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट वी कैन से, बट आपने जो अभी मैंने सुना, आपकी वॉइस इतनी मेस्मराइजिंग है कि अब इंडिया में भी हम बोल Thanks a सकते lot. हैं कि हाँ, वी हैव ओपेरा सिंगर्स। We have एंड Indian माय नेक्स्ट opera क्वेश्चन इज genre. इंडियन ओपेरा जॉनर, राइट? Genre. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच डज ए टॉप टायर ओपेरा सिंगर अर्न लाइक यू? अच्छा, हर कोई that's अपनी like a कमाई बताता very नहीं है, जरूरी नहीं है, ऊपर से लड़कियां तो और बताने के लिए कतराती है मैं भी नहीं अपनी बताने अर्निंग। वाली। I मुझे would मत say बता यार, मेरे व्यूअर्स को बता दो। actually it really depends from person to person कि आपका हाँ, creativity बट पे एक depend करता है कि आप हम्म, with the shows, see, opera का scene definitely it's less in India for sure and more in Europe. ये तो बहुत clear है, like there you have the opera houses where you can get to work. If you go for the opera training, there you it can all get to depends work, you upon can the get work and really like order अभी basis आज के की। दिन मुझे opera singing दे जाती है, like अगर मैं अपनी बात नहीं करूँ, मैं normal बात करूँ, you may earn from either teaching or like performing करके. I think generally a person who is good in this can earn about 2-3 per month ऐसे. But yeah, if it is like really depends from person to person and from creativity. I don't know, like ओके, हमारा case में डिपेंड्स अपॉन कि कितनी कौन से सिंगर की कितनी वैल्यू है, और कितनी फेम value कितना है. डिपेंड करता है। बिल्कुल नेम डिपेंड करता है, like how much name you have in your field. Like it's just like suppose अब मेरे पास students आते हैं for the training. I have students from all over the world, Singapore, Italy. वो क्यों है? Because when I started, I don't know, like shows जरूर करती थी, but I wasn't into teaching as well. अभी I'm into teaching like from past 6-7 years हो चुके हैं. So initially people they don't know about you. The more you hard work in your field, more you do the projects. Like I taught in National School of Drama. I worked with the these really good artists from the opera world and different people. तो वो जितना आप काम करते हो बिना सोचे करते जाओ hard work. You need to work hard, that's हाँ, it, and passion के साथ. So it फल brings की you money चिंता मत only करो, for काम sure. करते जाओ। Exactly, फल की चिंता मत करो, काम करते जाओ. हमें you cannot predict about your future, but at least be in present and make it good. You cannot predict about your future. At least अपने present में तो आप काम करो, focus करो.
and whatever God gives you, that's like destiny. I mean, it takes you everywhere. And एक और जो आपने पूछा जैसे again for the income thing, it really depends, to be honest. कि Okay, the next question is, have you always known you wanted to be a singer, or did the passion develop over time? So basically, I used to sing, like I was like 2-3 years old and used to sing Ilarun songs. बहुत मुझे पसंद थे. Like it's just, I started with folk, Bollywood and all that. And one of my dad's friend only suggested him, you should actually make Kabuki a singer. Like you should actually work on her singing thing, because she has this thing which should actually, if it can be developed, would be nice. But I always used to think कि मुझे like I always wanted to become a news reader, journalist. In fact, Journalist. I journalist. Yeah, I always wanted to become a news reader, and journalism में जाने का बहुत शौक था. Like, I even now whenever, so I listen to the news less. ऐसा नहीं ज़्यादा देखती, but उनको सुनती ही ज़्यादा हूँ. How they say, how they tell, and how like I really like the attitude, like how they are. No, like I just love it. So I used to. Even I was preparing for journalism when I was in 9th, 10th. I had many books पढ़ती रहती थी like crazy. And इतने मोटे किताबें. पूरी हाँ. And my parents used to be like, यार यहाँ पे शो कर रही है 3 बजे तक रात तक. फिर सुबह अपना books लेके I used to sit and All rounder. what. Yeah, to be honest, all rounder तब कहती जब मैं वो भी होती और ये भी होती. But yeah, that is also not possible. Like now I realize कि अभी singing नहीं, इतना अलग-अलग worlds we are living. I am living both two worlds, I could say, both worlds. बिल्कुल teaching workshops, different field when you are like just like that and jeweled up and okay and very serious. And that's not like how it's supposed to be with the makeup and a makeover. And this world is just like you peppy, you bubbly, you like just happy and singing, enjoying, interacting. So this world is different. See, even in art, there are two worlds I could see. So पता नहीं अगर journalist होती तो क्या पता मैं कर ही नहीं पाती. So see, whatever is written in your fate, that only happens. पर हाँ, मुझे journalism में जाना था, and this was like my hobby. अगर जर्नलिज्म में जाते तो इंडिया में, अगर आप जर्नलिज्म में जाते तो इंडिया में ओपेरा सिंगिंग की शुरुआत कौन करता? तो सोचने वाली बात है ये तो okay. सोचने वाली बात है. हाँ नहीं मतलब see, so that's what I could say. Like I think I was made for this, and I came into this. You are made for singing industry, music industry. And the next question is, what you do to keep your voice in good shape? मतलब रियाज करते हो, कितने घंटे रियाज करते हो? मतलब सुबह उठते ही रियाज करना स्टार्ट करना होता होगा. I tell you, it looks easy, very easy. Like when people see कि अच्छा गा लिया यार, गा तो हम भी लेते हैं. हाँ लोग गाने में क्या है, हम भी गा लेंगे. और कुछ लोग ऐसा भी होता है ना, यार ये क्या गा रही है, मतलब कुछ समझ ना आए तो हाँ यार ये क्या गा रही है. हम अगर वो खुद ना गा पाए, I mean this also happens, no? Like आप hit कर रहे हो, high note hit note, high note hit कर रहे हो. Like people they actually appreciate. Positive में ही बोलूंगी because मैंने ज्यादातर देखा है people appreciate, but there are people like rather than working on their skills, I would also, this is also a message to the people out there कि कभी नेगेटिव मत हो. इसी क्वेश्चन से मेरे माइंड में चीज आई, नेगेटिव मत हो. डोंट लुक एट द पीपल कि यार ये वो कर रहे हैं, ये लुक इन अ पॉजिटिव वे. अरे ये वो कर रहे हैं, अरे ये वो कर रहा है, अच्छा मत करो डे ड्रीम, मत करो टाइम वेस्ट पूरे दिन. काम करो, काम, जस्ट वर्क, because that's gonna give you a result for sure, and might be the person you're talking about कि यार ये तो वो कर रहा है, ये तो ये अच्छा, वो he might be or she might be a friend one day. तुम लोग हो सकते हैं साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हो. You never know. So actually, what I feel, obviously, just look at the life with a very positive attitude. रोने के लिए 100 चीजें. I think जो ऐसा बोलते हैं उनको सिर्फ एक ही जवाब कि look at yourself कि आप क्या कर रहे हो. डिपेंड ये नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आप क्या कर रहे हो. एटलीस्ट जो काम कर रहे हैं उसको रोकना टोकना, I don't think that is good. ये manners में भी नहीं आता. See, in fact, this happened with me also when I started Indian opera genre.
कि इंडियन ओपेरा जाना, माय पीपल ओनली फ्रॉम द ओपेरा, लाइक many वुड नॉट लाइक टू मेंशन दो, क्योंकि मैं भी ज्यादा पॉजिटिवनेस उसमें होती हूँ कि आई जस्ट टेक इवन द नेगेटिव थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे, मुझे पता नहीं चलता कोई नेगेटिव भी बोल रहा हो तो आई हैव ऑलवेज सीन दिस, obviously. I'm like अच्छा वेरी नाइस, I'm like okay that was negative probably, but yeah, apart from this, so there were many people, see mention नहीं करूंगी names, but I would like to tell कि अरे इंडियन ओपेरा हिंदी ये क्यों करना, I said see unless and until people are liking it, it's about people, they like it, I mean people should like it, that's what हमारा as an artist is criteria, मेरा as an artist ये criteria नहीं कहूंगी कि मेरा criteria है कि ओ when the students they come, many students they just ask one question पहली सबसे पहले क्लास में, मैम क्या हम फेमस हो जाएंगे, मैम क्या हम स्टार बन जाएंगे, हम लाइक यार इस सोच के साथ आप काम ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारी खुद की ये सोच नहीं है Obviously. दैट, हाँ सबसे पहले आप ये चीज हटाओ कि हमें वो मतलब यू शुड ग्रो, अगर सपोज इफ आई वुड हैव बीन एन इंजीनियर तो मैं इंजीनियरिंग में आगे जाती, आई वुड हैव वर्कड हार्ड इन दैट Obviously, फील्ड। अगर आप आपकी आवाज अगर लोगों तक पहुंच जाएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने सक्सेस हुए हो। तो I mean it's बस like ये है कि डोंट लुक बैक। don't look back, people should feel happy, like हम entertainers हैं, मैं तो सबको ये it's very I'm very frank about it that see हम लोग entertainment वाले लोग हैं, we have to entertain people, people should be entertained with our skills, they should feel happy, that's all I want in my life, that's all my aim is कि मैं happy रहूं, लोग भी happy रहें, कोई sad भी हो, किसी का life में problems चल रहा हो, एक बार वो people who listen to a songs and video देखकर at least उनके मुंह पे थोड़ी सी भी smile आ जाए, बस that's what an artist life is about, all about, that's it. So ये चीज, और एंड जैसे आपने आपकी मुझसे कितनी वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू, आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक्सेप्ट दिस म्यूजिक इंडस्ट्री को अगर छोड़कर, अगर एक अलग पार्ट में अगर आपको देखा जाए, एक अलग चेहरे में, घरेलू चेहरा कैसा है आपका? अच्छा घरेलू, like the cooking and all stuff you're asking, राइट। अच्छा ठीक है नॉट मैं बताती कुकिंग, हूँ। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो एक हर इंसान का एक दो चेहरा होता है, एक होता है प्रोफेशन, एक होता है पर्सनल। तो पर्सनल लाइफ में सारी चीजें आ जाती है जैसे कि फैमिली एंड ऑल एंड डेली स्टफ एंड डेली रूटीन, इवन कि अभी रूटीन में अभी आप क्या कर रहे हो, लॉकडाउन पे अभी कैसा चल रहा है लॉकडाउन, और फैमिली एज अ बेटी अगर आपको देखा जाए तो आप कैसी हो अपने फैमिली के लिए? as a बेटी एंड बहन एंड या अभी तो यही रोल्स है एंड मेरे। या ओवरऑल या सो आई टेल यू, अभी आजकल जैसे लॉकडाउन है, सो अच्छा ये मेरी फैमिली में भी कहते हैं काबू की सीरियल में तो फिर भी वो लोग कम रेडी रहते होंगे, तुम हर समय रेडी दिखती हो, दे जनरली से दिस घर में जिम करना है, ना आई ये हर जस्ट लड़कियों का वेयर, है। हर किसी का है, आई थिंक इट्स एवरी गर्ल। इवन मैंने सीरियल में भी देखा है कि अगर कोई एक्ट्रेस अगर सोकर भी उठ रही तो दे पुट अ लॉट ऑफ मेकअप एंड अ लॉट ऑफ टू बी ऑनेस्ट लिपस्टिक्स एंड ऑल। मुझे तो एक्चुअली मेकअप इतना आता ही नहीं है, लाइक जो प्रॉपर मेकअप करते हैं, द ब्लश ऑन एवरीथिंग, आई डोंट नो दैट, आई जस्ट पुट लिपस्टिक एंड दैट्स इट, नो फाउंडेशन, बिकॉज ठीक है जरूरत इतना, बाय द गॉड्स ग्रेस ये फायदा हो गया कि मेरा ब्यूटी पार्लर का खर्चा बचता है, आई डोंट डू एनीथिंग लाइक नथिंग, मतलब इसलिए क्योंकि तो मुझे फिर जरूरत नहीं अगर पड़ती आपका जाने की। ब्यूटी पार्लर का खर्चे बच गए, मतलब आपका हाँ ये मतलब बचता है। खर्चा बच गया, मतलब 90% आपने अपने जीवन में खर्चा बचा लिया। So, घरेलू की बात कर रहे हैं ना हम, तो इससे आई टेल यू, तो ब्यूटी पार्लर का खर्चा मेरा होता ही नहीं है, बिकॉज मैं जाती नहीं ब्यूटी पार्लर, तुम ब्यूटी पार्लर आंटीज लाइक ये तो आती नहीं हो काबू की, तुम तो कहाँ जाते हो, लाइक मैं कहीं नहीं जाती, मुझे अभी बाय द गॉड्स ग्रेस इस चीज की जरूरत नहीं पड़ रही फिलहाल तो। सेकंड हाँ एक जरूर चीज है घरेलू में कि मेरा रूटीन मैं आपको बताती हूँ, हमने जैसे पूछा लॉकडाउन में, अभी आजकल जैसे घर में हूँ तो पूरा रोटी बनाने का जिम्मेदारी इज माइन, आई हैव टू मेक द रोटी, द फुल्के एंड ऑल दैट, एंड हर वीकेंड पे आई मेक स्पेशल डिशेस लाइक शाही पनीर मैं बनाती हूँ, शाही क्योंकि पनीर, मुझे शाही पनीर आई मेक, एंड ऑल दीज शाही पनीर, चिली पनीर, ऑल द पार्टी खाने, मखनी दाल, राजमा, ये सब चीजें मुझे हर वीकेंड पे मेरा मतलब डिसाइडेड होता है दैट आई हैव तड़के टू। वाली तड़के लगाने वाले, चाहे लाइफ में तड़का लगाना हो, चाहे व्यूअर्स के जीवन में तड़का लगाना हो, तो कोई आपसे सीखे। मतलब घर पे भी तड़का लगाना,
बाहर में भी तड़का लगाना, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक नया तड़का आपने ले आया है उत्तराखंड का, तो ऑलराउंडर यू आर। ये थैंक यू सो मच। आई मीन यार एंड अभी हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव विजिटेड? a lot many, हाउ मेनी कंट्रीज यू Ireland, हैव विजिटेड एज Belfast, अ सिंगर? बहुत लाइक दुबई, बैंकॉक, थाईलैंड, पताया वहीं पे खैर, एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, हर जगह। बेलफास्ट, बेलफास्ट ये कहाँ पर है? आयरलैंड में। देयर इज नॉर्दर्न एंड द सदर्न। सो उसका एक पार्ट वेयर आई परफॉर्म्ड। आई वाज प्रीटी यंग, काफी छोटी थी। काफी छोटी भी मतलब अब से 2-3 साल पुराना बात हो गए, बहुत छोटी काफी हुआ, बिकॉज या so performed like I had this performance. I was performing in a French. I was performing this French song, and luckily I had this their French audience. My God, अब याद मत दिलाओ because अब मुझे काफी याद आ रही है। फिर देन उसके बाद दास्तान गोई के साथ भी करा मैंने, म्यूजिकल दास्तान गोई with this Okay. really good दास्तान को। जिसमें ऐसा करा था कि उदयपुर टेल्स we did and different इंडिया में भी जगह जगह वेरी मेजर फेस्टिवल्स। सो बस घूमते ही रहे। अभी रिसेंटली लॉकडाउन से पहले मैं आगरा होके आई थी, ऑल्दो नॉट सो दूर, बट बिल्कुल जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके डोनाल्ड थोड़े दिन ट्रंप पहले। के साथ। ओ या, वाओ हाउ वेल यू कनेक्टेड, सी। रिसेंटली आपने बोला ना, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप भी आया था, इसलिए मैंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया। एग्जैक्टली, हाँ ये तो है। सो दैट्स व्हाट आई मीन। बस घूमते ही रहते हैं यार, अभी घर में है बस। अभी ऐसा मिस भी करते हैं बिकॉज इतना आई एम सो फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग कि यू फील यू मिस इट। आई मीन आई थिंक मुझे, मैं अपनी भी बात नहीं कर रही, और भी जो आर्टिस्ट होंगे, जो लोग जिनका गिग्स हैं या जिनका शोज हैं जगह जगह, तो वो चीज तो नहीं है ना। तो इट्स लाइक we feel very bored sitting at home, but yeah, we have to be positive again and sing if yahin se and be happy. अभी thank God studio है, so you could record there. Otherwise, I don't know how the life would have been like. फिर वाकई में मैं शाही पनीर के बोस लाती, you know. फिर मैं ऐसा करती कि देखो सी now see look at the recipes. I have come up with this new dish. So all that. And बाकी तो घरेलू में यही है। एंड अच्छा झाड़ू एंड ऑल दैट आई डोंट डू झाड़ू बिकॉज पोछा। वो नहीं करती मैं। करती इन द सेंस ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है, कभी कोई मेड ना है तो कर लो, बट आई वुड से यार टाइम नहीं मिलता। ये घर में मेरे बड़े मशहूर है लाइन, लाइक माय पेरेंट्स दे आर सो यूज्ड टू लिसनिंग टू इट। लाइक दिन शुरू होता है, रात होती है, टाइम नहीं है। अब मेरी यही कंप्लेन है गॉड से कि क्यों नहीं है टाइम। 24 आवर्स कहाँ जाता है? आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर इट गोस। बिकॉज़ इवन एक चीज 24 आवर्स कम पड़ जाते हैं। आई थिंक कम पड़ते हैं। 24 में कम पड़ते हैं, इसको 34 आवर्स कर देना चाहिए। कि एक दिन में 34 आवर्स, एटलीस्ट 10 घंटे एक्स्ट्रा मिलना चाहिए सोने के लिए। एग्जैक्टली ये भी एक चीज है। और मतलब ऐसा तो नहीं होता या जोक्स अपार्ट, जैसे मैं भी बात कर रही थी जोक्स अपार्ट, लाइक थोड़े दिन पहले मैंने जिम का वीडियो डाला था, तो आई वाज लाइक डांसिंग ऑन माय ट्रेडमिल। my pony was dancing, like pony dancing with me, something like that. I was just for fun, I keep coming up with the videos. Look खुश रहे, they feel nice about it, something happening there to see, ना, और मैं भी happy रहती हूँ that way. So I put that video and I was actually wondering टाइम हमारे पास है या नहीं है, पर वर्कआउट अपना पूरा टाइम लेता है, उसको नहीं आप कर सकते 15 मिनट में कर लूं। इट टेक्स एंटायर अच्छा खासा टाइम। तो टाइम के वर्कआउट के बहुत नखरे हैं। उसके बहुत नखरे हैं। दैट मतलब कहते हैं ना, जैसे इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, दैट यू हैव टू गिव टाइम टू इट। नहीं दोगे तो यू कीप गेनिंग यार, एज वी आर इन लॉकडाउन। सो या ऑब्वियसली so हाँ, ये है कि अगर लॉकडाउन है और आपको काम करने को कुछ नहीं है, तो हाँ फिटनेस पे थोड़ा बहुत ध्यान दे देना चाहिए। बट प्लस हाँ, हम तो इंडियन है, एंड एज यू नो कि जिम जाने के लिए कितना खाना भी सब कुछ रोकना होता है। सब कुछ। इनफैक्ट लाइक अभी मेरा टू नो 2 more questions I have कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर? हर इंसान के लाइफ में कोई कभी ना कभी एक मोमेंट ऐसा आता है कि हाँ हम फील करते हैं कि यार सब कुछ चला गया, फेलियर काइंड ऑफ। आई थिंक ये क्वेश्चंस बहुत पूछना तो नहीं चाहिए, बट ऐसे क्वेश्चंस ही मोटिवेट करते हैं लोगों को कि हाँ आगे बढ़ने में कितने सारे
रास्तों में कांटे आते हैं, और इसके साथ साथ अचीवमेंट भी मिलता है। जब तक आप कांटों पे चलोगे नहीं तो आपको डेस्टिनेशन दिखेगा कैसे? True. तो So, अचीवमेंट एंड फेलियर, बोथ आई वांट टू नो अबाउट। failure, I would like to tell you. Achievements तो बाद में ही खैर. I tell you how at very young age. So I had my show in Royal Opera House. ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं. एक आपको बता रही हूँ. एक टाइम पे मुझे वॉइस पैरालिसिस हो चुका है. And doctor asked me, told this to me, जो आज people, आज I'm singing by the God's grace and everything is fine, I'm wish to, because मैं ऐसे दौर से गुजरी हूँ जहाँ पर मेरी आवाज गायब थी, like गायब in the sense मैं मुंह खोलती थी but मेरी आवाज तक मैं I could not even speak. I had voice paralysis. कैसे? Long story है, like I used to have this people they say this to me आज के दिन, जैसे बोलते हैं इट्स कि एन आप एक्सीडेंटल और बताऊंगी हाँ सब कुछ. accidentally, okay, I'm coming on to that. I'm coming on to that. So like I don't know if I should tell but I really want to. तो आज जैसे लोग कहते हैं कि आप की जो आवाज है वो by the God, it's God gift and all that. Yeah, हमने बट डेवलप करा है, हमने बहुत कुछ देखा है जो we can't even tell. I mean it's like in my case मेरा एक टाइम पे जो वॉइस पैरालिसिस हुआ था वो ये था. पीपल जैसे आज कहते हैं कि आप नर्वस नहीं होते यार, आप ये नहीं, आप बड़े कॉन्फिडेंट. ये तो वक्त ने बनाया है क्योंकि हमने ठान ली थी. एक टाइम था जब आई like no decided to give up on this कि नहीं करनी मुझे सिंगिंग. क्यों? मैं रॉयल ओपरा हाउस में मेरा परफॉर्मेंस था, और ऐसे उससे पहले ही परफॉर्मेंस और भी थे ओपरा के जब हम कर रही थी. तो मेरी आवाज में प्रॉब्लम्स आती रहती थी थोड़ी थोड़ी दिन बाद. लाइक यू नो दिस आई वुड नॉट मेंशन बट द रॉन्ग ट्रेनिंग, वॉइस ट्रेनिंग. अभी मैं वॉइस कोच हूँ. हाँ, मैं वॉइस कोच हूँ, तो मैं ये चीज बहुत ध्यान रखती हूँ. और अपने स्टूडेंट्स को, इवन जो व्यूअर्स हैं जो आगे इसको करना भी चाहेंगे, आगे सीखना चाहते हैं, भाई आवाज का बहुत ध्यान रखो. हाई रेंज में गाना इज नॉट कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया. नो, इट्स एक्चुअली इट्स मोर अबाउट ध्यान से गाना. वोकल का आप जो कह रहे थे कि गले का ध्यान रखना इज बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट. बिकॉज यू नो व्हेन आई स्टार्टेड, जो ये मेरा जब से रॉयल ओपरा हाउस में था, जो मैं इंसिडेंट आपको बता रही थी, coming on to the same. So I had this performance. I lost my voice a day before the performance. गायब आवाज. ऐसे था जैसे मैं गा रही हूँ, सपोज suddenly think of me, suddenly think of me fondly. So if I'm singing, I have to sing something. It was like think. I can't even think about it. अभी तो मैं सोच के बता भी नहीं पा रही आपको क्या हालत थी मेरी. I used to cry. Every doctor told me कि आपका हम समझ नहीं आ रहा आपका केस. We could not understand what has happened with your voice and we're really sorry. Then I used to go to every, तब से मैं भगवान को मानने लगी. I started believing in God. There is this power. I started believing in God a lot since then. And क्योंकि सब कुछ, I mean it came back later. And वहीं पे जो मैं अपने सर के बारे में बता रही थी, जैस्मिन मोंटेरेल सर. So I was in Royal Opera House, बॉम्बे. दिल्ली में मेरे पेरेंट्स, यहाँ पर मैं बॉम्बे थी. छोटी थी, बड़ी भी नहीं थी कि इतना स्ट्रांग होता है इंसान का हार्ट. छोटी थी एंड मेरा परफॉर्मेंस था रॉयल ओपरा हाउस में, इतने सारे लोग के सामने, मेनी पीपल. इट्स प्रोफेशनल थिंग. यू कैन नॉट से दैट आई हैव गॉट सिक, मुझे घर जाना है. आप बच्चे नहीं हो कि पिकनिक पे आए हो और आपको घर भेज दिया स्कूल वाले प्रिंसिपल. Being a professional एज फिर नहीं है. When you started at a very early age, then you have to be professional. वहां पे मेरी आवाज गायब. People were like looking at me कि यार काबू की तो you cannot sing. What will you do? I was literally cried over the call. I literally cried and told my mom, मम्मी मेरी आवाज नहीं आ रही. यही था मेरा पहला लाइन, मम्मी मेरी आवाज नहीं आ रही. मॉम वाज लाइक बेटा fine. अब लोग सब ये बोलेंगे it'll be fine, but फिर that time I had so much, I was in so much stress. बिल्कुल ही आवाज नहीं निकल रही थी. मतलब मैं सोच के भी नहीं बता पा रही कि कैसा था वो फेस. किसी के साथ हो भी मत और मेरे साथ भी बिल्कुल मत हो वो. that was a very difficult time for me. So my Jasmine sir, he gave me these pebbles. He gave me pebbles दिया उन्होंने मुझे. Colorful pebbles थे. He gave me those pebbles and he was like, Kabuki, my dear, don't worry, you put this on your throat. I was like, I was wondering मन में, these pebbles, what can it do to me, to my vocal cords? I mean,
चलो आई वाज लाइक यार अभी होप होती है, कहते ना एक होप होती है कि आप बस होप पे चलते जाते हो. सो आई पुट दैट पेबल्स thrice in a day. Next day, it was unbelievable. I have seen this miracle. Next day, I had my voice. I performed really well, and it was so good. एक तो ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है. उसके बाद मेरा वॉइस भी ठीक हो गया था. सेकेंड टाइम आई टेल यू, आई हैड माय फाइनल एग्जामिनेशंस ऑफ ट्रिनिटी, where I had to perform many arias, many pieces जो मेरा था. My advanced performance examination where I had to perform and all that. उससे पहले भी मेरा आवाज में इशू आया. आई डोंट नो, लाइक यू नो समथिंग आई फील गॉड जरूरी नहीं है हर किसी के इजी रास्ते हों. वन ऑफ दोज यू कैन से लाइक अभी तक मे बी गॉड टेस्ट यू ऑन एवरी स्टेज. शायद आपको आपके लिए वो एक तरह से एक एग्जामिनेशन ले आते हैं आपके रास्ते में, मे बी कि हाउ यू फेस इट, एंड दैट्स हाउ यू बिकम मैच्योर एंड मोर एक्सपीरियंस. यही सब एक्सपीरियंसेस है. तो मेरा तब एग्जाम में प्रॉब्लम आया. फिर मेरा परसों एग्जाम, ये मैं आपको बता रही हूँ बात 2015 की, 2015 आई हैड माय एग्जामिनेशन एंड मतलब परसों एग्जाम है, आज मेरी आवाज नहीं है. I was like, I used to be like, what is happening with me? That time I was like, no, ये क्यों मेरे साथ होता है? I used to cry a lot कि then my mom and then I don't know, I just मैंने अपना बस मैंने काम हुई सबसे पहले एंड सोचा लाइक आई बिलीव्ड इन गॉड एंड आई प्रेड टू गॉड दैट इतना मेरा मेन एग्जाम है एंड आई कैन नॉट जस्ट लीव इट एनी हाउ. फेलियर हो सकता था अगर नहीं होता, बट गॉड सपोर्टेड मी. माय वॉइस केम बैक एंड आई sang, ठीक है, एंड आई कुड डू इट. अभी मेरा उतना प्रॉपर नहीं था वॉइस, बट मैंने अपने प्लेसमेंट बनाई. उस सिचुएशन ने मुझे सिखाया कि जब आपके पास बहुत मुश्किल का टाइम हो, उस मुश्किल के टाइम में रास्ता मुश्किल है, मुश्किल कहीं नहीं जा रही, मुश्किल तो वही है. ऐसा तो नहीं हो सकता यू क्लिक एंड विल गो. मुश्किल है, बट उसको आप किस तरह से फेस करते हो, किस तरह से फेस करते हो, वो चीज मुझे सीखने को मिली कि आई माइट हैव मेनी इश्यूज लाइक प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, बट उसको आप कैसे फेस करोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट. सो इट हैपेंड, इट वाज गुड. अगेन आई टॉप्ड इन ट्रिनिटी कॉलेज इन ओपेरा. सो ये बट इतना मुश्किलों का मुश्किल दौर है तो सभी के साथ, आई थिंक सभी की लाइफ में एक ऐसा दौर जरूर आता है कि कुछ चीजों को हमको स्किप करके आगे बढ़ना होता है. तो अगर हम इन सारी चीजों को लेकर चले तो आई डोंट थिंक सो कि जीना मुश्किल हो जाता है उस वक्त पे. और मतलब वाज आस्किंग अबाउट योर failure. अचीवमेंट. अच्छा, सो अचीवमेंट्स तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि जैसे आई हैव सीन इन माय लाइफ लाइक जैसे कुछ अपॉर्चुनिटी है. अचीवमेंट इज लाइक कि लॉकडाउन में हमें मुझे रोटी बनाने का मौका मिल रहा है, तो ये मेरा अचीवमेंट है. मैंने लॉकडाउन में शाही पनीर बनाना सीखा, बाकी खाना तो आई मेक इट ओनली. सबको आज जैसे आता होता है, दाल बना लिया, ये बना लिया, ऑल दैट आई नो दैट इट्स प्रीटी इजी, बट मतलब ऐसे डिशेस बनाने का मौका ना लाइक तो ऐसा कुछ, तो वो मुझे सीखने को मिला. एंड अचीवमेंट्स जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स करती गई एंड अभी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द लाइफ एज वेल कि अभी हैव टू डू अ लॉट मोर वर्क. एंड अचीवमेंट ये था कि मैं आई एम द अभी जैसे यंगेस्ट टीचर इन दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक. दैट्स आल्सो लाइक एन अचीवमेंट बिकॉज अभी मैं हूँ जितने साल की मेरे पास है डबल इयर्स के स्टूडेंट्स, लाइक दे आर लाइक डबल ऑफ माय एज, वेरी एल्डर एंड लाइक सो दैट्स लाइक अचीवमेंट कि मुझे इस मैंने खुद ही नहीं सोचा था कि इस एज में अभी आई एम श्योर लाइक नॉट श्योर आई नो देयर आर मेनी talented people out there who are just 16 and doing getting Grammys and all that. तो I mean salute to all of these and यही चीज है कि बहुत मेहनत से हर कोई बनता है and हम बस मेहनत करते जाओ. that's what like this working hard and यही अचीवमेंट्स है. देखो लॉकडाउन में भी सॉन्ग कर पाए, रिलीज कर पाए एंड लॉकडाउन में भी एटलीस्ट अगर लॉकडाउन ना होता तो आई थिंक आप भी लाइव ना आ रहे होते, कहीं किसी स्टूडियो में जाकर आप बैठकर रिकॉर्डिंग पे होते. तो लॉकडाउन भी बहुत सारी चीजें हमको सिखा दिया है. बहुत कुछ सीखने को मिलता है. लॉकडाउन में पता चला कि फैमिली वैल्यूज क्या होती है, कि हम एटलीस्ट हम अपने फैमिली के साथ वो टाइम भी स्पेंड करने मिल रहा है. आई थिंक किसी भी हॉलीडे में इतना टाइम स्पेंड करने आपको अपने फैमिली के साथ नहीं मिलेगा. तो आई थिंक जो चीजें होती हैं अच्छी के लिए होती है.
और हम्म। बुरा तो हम बोल नहीं सकते कब हो जाए, बट आई वांट कि कभी ना फेस हो इट, किसी के साथ। बुरा हो फेस इट, एंड डोंट फेस इट, डोंट स्किप। घबराओ मत, फेस इट, solution. तो आप, यू कैन नॉट चेंज द प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यू कैन कम अप विथ वन सोल्यूशन। मे बी इवन देर इज नो सोल्यूशन, कुछ ना कुछ तो होगा ही, देर कुछ तो इज होगा, क्योंकि वे, लाइक अगर कुछ ना कुछ तो होता ही है। दुनिया में बुराई बनी है तो अच्छाई भी जरूर बनी है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का आई भी सॉल्यूशन बनी, कहीं ना हाँ। कहीं बना होता है। हमें ढूंढने में वक्त जरूर लगता है, बट कभी ना कभी किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिल जाता है। एंड आई वांट टू आस्क यू कि हाउ कोविड ट्रू दैट। 19 affected music industry. So I think COVID-19 has affected music industry in this way that people are like just at home and like a Nobody is lot more working, shoots right? and everything has stopped. Gigs, nobody's working. It has affected a lot more people who are like into the live shows because they perform everywhere and like the gigs and everything. Nothing is happening. It's for many people that's only the source of bread and butter. That's only the source. I mean, unka bread and butter he is because of the live shows, है ना? So not everybody is in the two professions as an artist. There are many artists out there who are just doing this for their like livelihood. Like not everybody like for the it is for the hobby and all that. So yeah, side business. So ये that it has affected those people जिनका rent जा रहा है, जिनका reason people are actually going in that zone की नहीं अच्छा और ये सब क्योंकि जिनका रेंट जा रहा है उनको रेंट देना है ना? जिनका Obviously. इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है उनको, अभी ये कल परसों ही बात हो रही थी विद वन ऑफ माय फ्रेंड ऑन दिस टॉपिक कि यार पैशन होना चाहिए। ठीक है, आई एग्री यार, आर्टिस्ट को यार नॉट बी दिस मनी माइंडेड। आई एग्री, आई एम सच अ पर्सन हु एक्चुअली बिलीव्स दैट आर्ट को मनी से यू कैन नॉट रिलेट। आई मीन आर्ट इज कनेक्टेड टू गॉड, पर आपका जो आर्ट है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे नहीं करेगा। आपका जो आर्ट है वो आपके पानी का बिल एंड ऑल दैट खर्चे आपकी लाइफ के वो नहीं पे करेंगे। व्हाट पेज यू एंड आपने उस पे इन्वेस्ट करा है। We as an artist and other artists and even for the other artists I'm saying over here, everybody, all of us has invested a lot in our life on our art. And हमने वो जो हम Obviously. COVID-19 की वजह से it has affected also those event management companies, क्योंकि वो भी आर्टिस्ट के थ्रू मतलब पूरा सर्किट है। अब सबका इतना नुकसान कि अभी तो है ही, अभी तो यू कांट परफॉर्म, बट what after, even if the COVID-19 is, even if the lockdown ends, even after that there would be no shows, hopefully, I mean in next 2 years, like 1-2 years tak log hi khud hi dar gaye hain. So I don't know how it's gonna be for the people. It's just being positive, but keeping yourself positive, but like I think there we everybody has to look for some other option, maybe like start with the classes, maybe start with the other things. कुछ बदल गया है लाइफ फॉर द इंडस्ट्री, आई वुड से जो लाइफ थम गई है बॉलीवुड सबकी, क्योंकि सबका थम ऑब्वियसली गया। जिसको 24 में 18 आवर्स लोग कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, जो 4 घंटे 6 घंटे की भी नींद मुश्किल से ले पाते हैं, और उनकी लाइफ सडनली अगर थम जाए तो हर किसी के लिए एक मुश्किल का ही दौर है। इसलिए तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नया गाना हो जाए इस मुश्किल दौर में। I अच्छा, want to listen a 90s song, अगर if possible, अगर आप मैं possible आपको वो है तो। सुनाऊं? मैं आपको वो सुनाती हूँ देन फॉर एवरीबॉडी। आओ हुजूर के साथ एक मैंने कोरोना का सॉन्ग बनाया था। ओके। बाबूजी ना निकलना, कोरोना से तुम है बचना। आपको सुनाती हूँ। तुमको सितारों में ले चलो, आओ
मंजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल छूट जाओ ये से बहार में चलो, आओ चाहत के उजले उजले, चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसे बहार में चलो, आओ isolation, isolation, isolation बड़ा ट्रेंडिंग है, बड़ा ट्रेंडिंग है संसार में, बाबूजी ना निकलना, कोरोना से तुम्हें बचना, बाबूजी ना निकलना, कोरोना से तुम्हें बचना, आइसोलेशन बड़ा ट्रेंडिंग है, बड़ा ट्रेंडिंग है संसार में, बाबूजी ना निकलना, आइसोलेशन बड़ा ट्रेंडिंग है, बड़ा ट्रेंडिंग है संसार में, बाबूजी ना निकलना, हाथों को छूना जरूरी है, सब प्रिकॉशंस लेना कोरोना से बचने के लिए, आइसोलेशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन बड़ा ट्रेंडिंग है, बड़ा ट्रेंडिंग है संसार में, बाबूजी ना निकलना, हाँ हाँ वाओ, इट्स ऑसम। मतलब मैं कहीं खो गया था मैं, मतलब सुनते अरे। जाओ सुनते जाओ, यू नो कि अगर कोई सिंगर सामने बैठा हो और गाना ना गाए तो महफिल क्या नहीं कह होती सकते हैं, यार, महफिल जैसे जब आपको तक ना जमे तो ये मैंने ऑब्वियसली। लिखा था भी, कोरोना के टाइम पे ही लिखा था, बाबूजी ना निकलना, कोरोना से तुम्हें बचना, आइसोलेशन, आइसोलेशन बड़ा ट्रेंडिंग है, बड़ा ट्रेंडिंग है संसार में, बाबूजी ना निकलना, कंसेप्ट बिहाइंड ऑब्वियसली अब दैट। इस गाने के बाद तो आई थिंक ये लोगों के लिए एक सबक भी बोल सकते हो कि अब कोरोना लोगों के लिए सबक भी हो गया है कि बाहर निकलना चाहते हैं किसी वजह से लेकिन निकल नहीं पाते, नहीं बात है, कुछ मजबूरियां you have to हैं be घर से, अगर एटलीस्ट आपको सब्जियां लेने तो जाने ही पड़ेंगे बाहर, तो ये एक मजबूरी भी बोल सकते हो। that is, that you have to, but मतलब कोशिश उनके लिए जो लोग, people who feel like partying and like बाहर, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलो, गुड फॉर यू, गुड फॉर द अदर पीपल आल्सो, मेनी पीपल आउट देयर जो जितना वर्क फ्रॉम होम ही कर पाओ, और ऐसा कुछ जितना ज्यादा यू कैन, लाइक हाथों को धोना जरूरी है, जो मैं गा रही थी, है ना, वो सब प्रिकॉशंस लेना कोरोना से बचने के लिए ही है, because we have to we need to keep like these we need to think about it, like हाथों को धोना एंड मास्क पहनना, कभी कभार हम ना केयरलेस में भी करते हैं, कि केयरलेसनेस में कि अरे लापरवाही कर देते हैं कि यार कौन पहने मास्क, हाँ, नहीं पहनते, लापरवाही, बाहर निकलने के कौन पहने मास्क, मतलब लोगों को घुटन सी होती है मास्क पहनने में, this ना I understand, it happens with me as well, like इवन I'm आई such a फील person, लाइक कि मुझे किसी ने बांध दिया है तो हाँ पहनना कोई नहीं चाहता है, बहुत मजबूरी है ये सबकी, अगर जिंदा रहना है तो पहनना होगा, अदरवाइज अब यही है,
बिल्कुल है। अदरवाइज फिर हम तो कंडोलेंस के लिए ही फिर गाने बनेंगे फिर। यू नो सो ट्रू, बिकॉज दी अभी जिन लोगों को हुआ है कोरोना, उनको खुद को भी नहीं पता होगा कि उनके साथ होगा लाइक ऐसा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को खुद सिक्योर रखें, खुद हम सावधानी करें, लाइक सावधानी बरतें, राइट। बढ़ते you have to be very safe. You need to take care of yourself first, then you think about others, because if you would not take all these precautions and would not care about all this, then you might be one of the person who gets corona, which is not good. So you really have to be very safe and just be safe from this corona thing. आई होप कि बहुत जल्दी ये सारी चीजें खत्म होगी। न्यूजीलैंड में तो कोविड खत्म भी हो गया है अब। वहाँ पे लास्ट पेशेंट भी डिस्चार्ज हो गया। तो आई होप कि इंडिया में भी बहुत जल्दी खत्म होगा और बहुत जल्दी हम सब बाहर जाएंगे। आई नो बहुत सारे लोगों को अभी गोलगप्पे खाने के शौक लग रहे होंगे, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि ना खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सिंगर तो हम लोग खाते भी नहीं, लाइक सिंगर में जैसे खाते होंगे। हाँ, आपको तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते होंगे। बहुत लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वॉइस, रियाज करना तो है ही जरूरी। प्रैक्टिस एक अलग चैप्टर है, दैट इज तो कंपल्सरी। सेकंड जो मतलब ल्यूकवार्म वाटर पीना, एंड ज्यादा गर्म मत पियो, ज्यादा ठंडा मत पियो। ठंडा तो डेफिनेटली नॉट। आइसक्रीम्स मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया है देखे हुए। सो एंड व्हाट डू यू थिंक कि मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू थिंक कि ओपेरा सिंगिंग की जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है फॉर वुमेन, आई थिंक बेसिकली वुमेन्स आर मतलब लड़कियों के आवाज में ही ज्यादा ये सुटेबल। नहीं नहीं नहीं, देयर आर मेनी मेन आल्सो। मेन में बहुत है ओपेरा सिंगिंग। So we have these categories. See, the basses, baritones, tenors, sopranos, altos, mezzo sopranos, countertenors. बहुत सारा है जिसमें the men they have this opera voice, तो वो है। और इसमें career opportunities is such that it says that first you take the right training from the right coach. Right coach क्यों कह रही हूँ? There are many people out there who just like started teaching without knowing enough about it, which is not right. Like आप पहले देखो आप किससे सीख रहे हो, आप सीखो, then go for the right coach, then you get the right training, and then you decide if you're really interested in pursuing this one, then you should go then abroad. आप वहां जाओ। और मैंने तो ये जॉनर के लिए ही मैं इंडिया में हूँ आज के दिन, की मुझे इस जॉनर को इंडिया में ही आगे लेके जाना है। यही मेरा एक लाइफ का गोल है, that I really wanna go this, but you know not everybody this ये तो मेरे क्रिएटिव वाला जोन हो गया। पर जो सिर्फ ओपेरा सिंगिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं वो ट्रेनिंग लें अच्छे से और बाहर जाएं। वहां पर उनको एनीवेज वहां बहुत स्कोप है, और you get to perform in opera houses and all, and your dream will come true with orchestra behind you singing in front with opera singers and singing. तो आपका है इसमें। एंड मैंने वन मोर थिंग, मैंने कुछ सुना है आपके बारे में, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, कि यू आर नोन एज अ स्कैरिएस्ट वुमन आल्सो। आई एम नोन एज अ स्कैरिएस्ट सिंगर इन इंडस्ट्री। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके गानों से लोग डरते भी हैं। पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बातों में। डरते क्या है, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव? नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आई थिंक डरते भी हैं, ऐसा मैंने कुछ सुना है। जैसे कितनी सच्चाई इस बात में वो तो आप ही बता पाओगे। ये वो तो एक ही बार हुआ था। आई वॉज अ किड एंड नॉट अ किड लाइक अ गर्ल, लाइक किड इन द सेंस अभी से पहले तो किड ही थी। तो so ना, मैंने सुना था कि आपके घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और हाँ कुछ लेबर जो हैं वो डर कर भाग गए थे। This happened because you know ये तभी के बाद ही तो मैंने डिसाइड करा भाई यहाँ पे लोगों को अब कम से कम मेरी जो मेड है ना, मेरी जो दीदी हु वर्क्स, और दीदी को भी पता है कि ऑपरा सिंगिंग क्या होती है, वो भी सुनती है। सो मेरा क्राइटेरिया इस बात के बाद भी आया कि मुझे इंडियन ऑपरा बनाना है यार, करना पड़ेगा, बिकॉज ताकि लोगों को स्कैरी मत रह जाए। सो यू नो पीपल हैव दिस परसेप्शन। ये मैं बताती हूँ, कंस्ट्रक्शन की उसमें आती हूँ।
So what happened कि I was like मैं ना असल में मेरा क्या है, मेरे friends and my artists हुआ, मेरे colleagues and my friends, they know about this thing about me कि काबू की या तो अपने घर में होती है या तो काम पे होती है, ऐसा करके है मेरा सिस्टम। तो मतलब मैं कॉलोनी में नहीं निकलती ज्यादा, इन द सेंस सब्जी लेने जाना है, कोई दीदी ले आएंगे एंड ऑल दैट, तो मेरा उतना नहीं है कॉलोनी का थिंग। और जिम भी मैंने अपना खुद पर्सनल बना रखा, लाइक आई एम सच ऑफ अ पर्सन, लाइक आई एम सोशल बट काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट एज वेल एट द सेम टाइम, अपने जोन में रहती हूँ, पसंद करती हूँ। तो मैं कॉलोनी में ज्यादा कभी निकली नहीं, तो इस मतलब घर में ऐसे कोई जानता नहीं हमारी कॉलोनी में कि ज्यादातर लोग कि इनकी कोई बेटी भी है, लाइक मेरे पेरेंट्स की Okay. एक बेटा तो है, हमने बेटा तो देखा था, हम्म। हाँ ही वेंट टू डबलिन ऑल दैट, या इट्स देयर, या बेटी भी नहीं जानते लोग। तो जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, हमारे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ बन रहा था, हम्म। so I remember back then, and I washed my hairs, ऐसे बाल, and ये complexion है एक तो उल्टा, like I just makeup थोड़ा dark लगूं, so I was like I was just in this, and ऐसे बाल थे धुले हुए, and I had to take my book, तो ऊपर गई अपने रूम में, जो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे मेरा बुक्स हैं वहां पर। So I went there to take the book, and there was a labor who were working, all the बना रहे थे, एंड मैं नीचे प्रैक्टिस करके गई थी, एज आई सेड रियाज बहुत जरूरी, तो आई मैं अपना प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो प्रैक्टिस करा मैंने मेरे रूटीन में, आई प्रैक्टिस एंड देन आई वेंट अपस्टेयर्स। अरे दे लिटरली गॉट स्कैर्ड इन द सेंस, दे वर लाइक एक अजीब अजीब सी आवाज आ रही है। अब अच्छा उनको नहीं पता कि नहीं पता, वो मैं उस बात पे भी आऊंगी, पहले बताती हूँ। तो दे लिटरली गॉट स्कैर्ड कि कोई भूत भूत है, मतलब मुझे पहले तो बहुत फनी लगी ये बात। दे वेंट टू माय मॉम, लाइक आंटी जी, लाइक माय मॉम, एंड हमने कोई आपके घर में घूम रहा है। अच्छा उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा घर में, मैं काम पे चली जाती हूँ, ये ट्रैवलिंग, और आई वेंट टू माय वर्क प्लेस, एक ही दिन में घर में थी, एक ही दिन उन्होंने मुझे देखा। सो द लेबर एंड दे वर लाइक आंटी जी आपके घर में कोई भूत भूत है और आप देखिए जरा। माय मॉम वाज लाइक वो कोई भूत नहीं है, वो शी इज माय डॉटर। अरे बट आंटी जी कुछ आवाजें हैं, भाई वो डर गए, लाइक दैट्स व्हाट, लाइक दे रियली got scared of the दिस थिंग, बिकॉज उनको था कि वो इंडिया में परसेप्शन बना रखा है, एक मिसकंसेप्शन है जैसे बहुत जगह, ये जैसे मैंने सुना है हाँ शुरू में हाँ, जब मैंने बहुत स्टार्ट सारी करा था जगहों पे है। अरे भूत, जो रूरल एरिया है, एग्जैक्टली, आई मीन देयर इज दिस थिंग व्हिच इज लाइक जी हॉरर शो में, हर हॉरर में डाल देंगे यार ओपरा, सो पीपल उनके माइंड में यही है। जैसे दिस वन ना, हाँ, एक कैरियर सा साउंड। yeah, okay, but it can be sung like this. Think of me fondly when we've said goodbye. Now it's not scariest anymore. तो लोगों को ना ये यहाँ पर हॉरर में डाल जैसे दिखाया जाता है, तो उनका माइंड में वो बन गया है कि इट्स हॉरर। जैसे अब तो नहीं, अब आता जा रहा है बाहर पे, वर्ल्ड इज गेटिंग डिफरेंट, सो दिस थिंग इज इन सो मच इन इंडिया, आई हैव सीन। सो वो चीज हुई एंड वो भाग गए, दे लेफ्ट द वर्क द नेक्स्ट डे, आई गॉट टू नो, एंड आई वाज लाइक यार it was a funny thing though, it's a very funny moment to talk about. So देन उसके बाद ही ये इनफैक्ट मेरे माइंड में ज्यादा आया था कि मुझे ऐसा कुछ इंडियन ओपेरा ऐसा कुछ बनाना है कि लोगों को पता चले ओपेरा हॉरर नहीं है भाई, इट्स नॉट द भूती थिंगी, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल जॉनर। सो या दिस वाज द या इट्स इंसिडेंट जो आपको ब्यूटीफुल, पता था। एंड आपकी वॉइस बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग है, और मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी एक ओपेरा सिंगर के साथ एक इंटरव्यू सेशन। वुड लाइक टू लिसन वन मोर सॉन्ग, एंड one more, I can say it is our last song, and एक मिनट ना, just a sec. मम्मी धीरे बोलना, आवाज आ रही है। This also happens a lot time. मेरे घर अब पे हम भी होता स्टार्टिंग, है। ठीक है? हाँ, अब हम स्टार्टिंग, लाइक ठीक है, you just say 3 2 1 I'll start, मतलब एडिट हो जाएगा फिर।
So Yeah, start 3, now. 2, 1, start. Love is a mystery. Love is a mystery. Come let me show you how it feels to be in love. Donen farabi katl kare, donen farabi, donen farabi katl kare, donen farabi. हर जगह रोला, ये आग का गोला है, दिलों की रानी में लड़कों ने बोला है। मुझे पाने के लिए लटक मेरे दोनों फरेबी, दोनों फरेबी कत्ल करे दोनों फरेबी। Love is a mystery. Love is a mystery. Come let me show you how it feels to be in love. I wish I could be the part of your life. I feel the pain inside. I never felt this way before. I wanna be yours. You and me, I'm meant to be a beautiful melody. But I'm sorry, oh baby, I apologize. What I got tears in my eyes, waiting for you, the love of my life, and I realize it's enough to say the words that you mean to me. I wanna stay in your arms till just want you in my life. तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां तुझको भागे गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पागे गलियां तेरी गलियां There's a heart that flies, I still by my side. I have no faith but you. तेरी गलियां Wow, it was awesome, and Thanks a wish lot. you the luck I mean, for your future. And thank you so thanks much. for inventing the new creature. Abhi though I've got like I'm happy like abhi tak I've got a lot of love from the audience like in it's the audience in the this audience in Just Directa Urdu Heritage like lot many people who are like actually now accepting and uske baad when they follow you like message karke and stuff everywhere ma'am when are you coming back ma'am when are you doing so I'm happy I feel blessed that I'm getting this much love and I really want कि मुझे ऐसे ही I keep getting this much love, continue to get this much love और आगे भी ऐसे ही खुश करती रहूं सब खुश होते रहें और सबको अच्छा लगे वो whatever I came up with my renditions with so came with my renditions, Really so, yeah. appreciating it. How was your experience was- with News Hustle India? It was amazing. I mean, I really appreciate what News Hustle India is doing. As again, for the Women Empowerment Week, इसके ऊपर मैंने अभी तक नहीं बोला. It's a very important topic, very important, significant topic, like for development and
for the development and economical development also. Economic, yeah, it's very important because we need to uplift the women. I mean, it's it's very there are many areas, like one of my student only who's like whose parent doesn't allow her to take music ki like nahi karne nahi chahte tum isme jao. I just want like this should not exist like in future. Abhi jo hai, but at least women should be uplifted. They should be in fact motivated कि आप you grow in your career, you choose what you want to do, you do what you wish to do in your life, and that's how it should be. And what News Hustle India is doing, that's a great initiative. So I'm really happy because with the interviews and all the other ones I've been giving, it was more about music and all that. But what News Hustle India has come up with, ki women empowerment ke liye, that's the series which is going on. I am so happy to be a part of it, and it's a great experience. Like I'm very glad to be. Yeah, basically what we are doing is कि actually लोग देखें और सीखें या फिर कुछ नया सीखें. जैसे कि आपने एक इन्वेंशन लाया है इंडिया में, it is appreciating. So I would like my viewers to know कि how women are developing. एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो काम करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते या घर वाले करने नहीं देते, या बहुत सारे ऐसे भी मेरे पास वीडियोस आते हैं कि सर मेरा वीडियो आप अपने पेज पे डाल दीजिए. बट ऐसे ऐसे वीडियोस हैं जो आप यकीन नहीं करेंगे. आप मे बी 13 years old गर्ल वांटेड टू बी अ सिंगर. मतलब उसकी आवाज बहुत प्यारी आवाज. आई विल सेंड यू द वीडियो एंड इवन what a mesmerizing voice she has. So अगर हम ऐसे voice को अगर हम प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे voices हैं जिसको हम चाह के भी जान नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है. Because the parents, they don't allow. I mean, yeah, their parents is that the reason? Want them. The reason is they're living in rural areas. I've seen this. It's very sad. It's very sad. In fact, ये women empowerment का. Sad. Parents are not allowing them to grow up. यार अगर वो grow करना चाहते हैं, अगर उनके मन में कोई इच्छा है, अगर studies, I know studies is more important, but study बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में important है, but उसके अलावा भी futures है ना. जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हम कैसे बोल सकते हैं. अगर किसी का मन है किसी फील्ड में काम करने का, किसी का मन है कि कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई एक्ट्रेस, यार लोग हर फील्ड में आज की डेट में अगर देखा जाए तो हर फील्ड में कॉम्पिटिशंस बढ़ गए हैं. सारे फील्ड में कॉम्पिटिशन है. बट इफ यू हैव दोज स्किल्स कि अगर आप उस कॉम्पिटिशन को कम्पीट करके अगर आप आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो ये हमारे इंडिया के लिए ही बेस्ट है और आपके पेरेंट्स के लिए भी बेस्ट है. तो this is the message to all the parents out there कि आप मत रोको किसी को. It's like क्या आपको इंजीनियरिंग में, tell me one thing, सब इंजीनियर्स क्या सक्सेसफुल हो जाते हैं? सब डॉक्टर्स की पढ़ाई कर जॉबलेस. Not everybody is employed. बेरोजगार हैं. Yeah, not everybody is employed. Not everybody has job. So it's not कि आप कोई भी फील्ड लो भाई, सब में कंपटीशन है. So if anybody wants to go in whatever field, you please support your बच्चा जो भी आपका kid है, you please, because it's that person might be a very good singer. चलो मैं ये नहीं कहती आप आर्ट में वैसे बनो, जरूरी नहीं है कि हर कोई सेलिब्रिटी ही बनने. उस सोच के साथ तो चलना ही नहीं चाहिए. बट इस सोच के साथ चल सकते हो कि you might become a very good teacher in that field and might train the other budding singers. So there's this very nice profession out there. You just and go you and might know कि 6 to 7% percentage of crime rates are due to parents आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या किसी मजबूरियों की वजह से वो काम पे जा रहे हैं, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. So 6 to 7% of crime rates are due to because कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से कोई सुसाइड कर लेता है. This is the case. ये तो मैं आपको real बता रही हूँ. The what thing you told me, it's very important info people for everybody out there कि you can Google it.
You can Google Yeah. it. 6 to 7% of crime rates are due to their passion, due to their It they is. want to be a successful. They need their career to be a successful. I would like to mention this in a short this one line कि मेरा ये real case मैं बता रही हूँ that one of my student would not like to mention the name though, but one of my student अभी recently that she now since we started with the online classes कि हम घर से ही we are teaching and all that, and जो projects कर रहे हैं वो अलग, जो teach कर रहे हैं online कर रहे हैं वो अलग. So one of the students, she could not take up the online classes. Reason? Because her father is there at home. पेरेंट्स है घर में, फादर ने अलाउ नहीं करा हुआ फॉर द क्लासेस फॉर सिंगिंग कि यू विल नॉट सिंग. शी यूज्ड टू कम छुपके से फॉर द क्लासेस कि मैं अपनी क्लास कर लूं. उसका मम्मा सपोर्ट करती है बट नॉट फादर. बट व्हाई, आई मीन व्हाई द गर्ल कैन नॉट टेक अप this profession or like not take up, yaar? Why not? Why can't she take it as a hobby? Why can't she sing? Because father is not supporting. I mean, why people cannot support? They really need to. अच्छा मतलब यहीं पे वो difference आ गया that the women, and then they definitely then these people come up with this thing, feminist women, this women empowerment, because we really need to uplift women. If that is lacking here, it has to go and it needs to come up with. So I really salute to this Hustle News India that you have taken this initiative Thank you so much. and like having And people like me and the other influencers to thank actually you give the so much. message. Thank you so much. And My thanks to you also for coming live on our talk show, News Hustle India Weekend Live. And it is my pleasure you came here, and you are the inspiration for many girls, many women who want to become a star like you, as you are, and really I'm just an it artist. is appreciating. Just an artist, and I really even tell people ki be a good human being, and be like whatever field you go in, be a good human being. Think about people, think about how world is going, and just do good, think positive, keep going. And just go on. Entertainment. Right. Okay. And once again, thank you so much coming live with us. And Same here. do subscribe our channel News Hustle India, and do subscribe Kabu Ki Khanna also. On YouTube, Insta, and Facebook, you can YouTube, follow my page. Insta, Facebook, Twitter. Kabu Ki Khanna, that's it. And News Hustle India as well, people. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.